Sikkim has been totally cut off from the rest of the country as not just the National Highway number 10, but alternative route in use is also now closed down. The Algara Road via Goskan line has been closed down for maintenance work by the state PWD department. The route shall remain closed from July 11th till 14th of July. This was announced by West Bengal government authorities in Kalimpong. With the National Highway number 10 lying in shambles and blocked at several portions owing to the ravages of monsoons and landslides, the closing down of the alternate route by the authorities in neighbouring West Bengal means that Sikkim will remain cut off via road till at least 14th of July. So far, it is not yet known if any other arrangement is going to be made to ensure continued connectivity with the Himalayan state and the rest of the country. So top focus from Sikkim this morning, viewers. The state has been totally cut off from the rest of the country as not just National Highway number 10, but the alternative route in use is also now closed down. The Algara Road via Goskan line has been closed down for maintenance work by the state PWD department. The route shall remain closed from July 11th till 14th of July. This was announced by the West Bengal government authorities in Kalimpong. With the National Highway number 10 lying in shambles and blocked at several portions owing to ravages of monsoons and landslides, closing down of the alternate route by the authorities in neighbouring West Bengal means that Sikkim will remain cut off via road till at least 14th of July. So far, it is also not yet known if any other arrangement is going to be made to ensure continued connectivity with the Himalayan state and the rest of the country. My colleague Prakash Adhikari is over the phone line for more on this. Well, Prakash, we know that Sikkim, it has been cut off from the rest of the country as the National Highway number 10 and the alternative route उसको भी close down किया गया है maintenance work के लिए. Details बताइए प्रकाश इस बारे में. जी हाँ, सिक्किम का जो लाइफ लाइन NH10 है वो आज 13 दिन से बंद है. आज 30 डेज हुआ वो तो टोटली कट ऑफ है नेशनल हाईवे से. और जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से अलगड़ा लाबा होके जो अल्टरनेटिव रोड था ओपन, वो भी आज से मेंटेनेंस वर्क के लिए 14 तारीख तक बंद कर दिया गया है. तो अभी सिक्किम टोटली कट ऑफ है. मगर दार्जिलिंग से एक रूट सिक्किम के लिए ओपन है, मगर वो लगभग 10 आवर्स का टाइम लगेगा. मगर उससे भी एक प्रॉब्लम है, जो तिस्ता बाजार के सामने पानी ज्यादा होने की वजह से वो रूट भी गैंगटॉक टू दार्जिलिंग का रूट भी बार बार बंद हो रहा है. मगर आज वो रूट ओपन है, मगर उस रूट भी रिक्सी है और तो घूम के आने से 10 घंटा से भी ज्यादा समय लग सकता है. तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि सिक्किम अभी जो देश के आगे प्राप्त से मेन स्ट्रीम से अभी टोटली कट ऑफ है. जी प्रकाश, 11th टिल 14th ऑफ जुलाई 5 दिन के लिए ये जो इम्पोर्टेंट रूट्स है, स्पेशली नेशनल हाईवे नंबर 10 जो आपने भी बताया, इट्स द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, ये बंद रहेगा, क्लोज्ड रहेगा. इस अरेंजमेंट के बारे में प्रायर कुछ नोटिफाई किया गया था जो पब्लिक है उनको, और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से किस तरह का अरेंजमेंट लिया गया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और एनी अर्जेंट सिचुएशन? जी हाँ, नेशनल हाईवे तो बंद है. नेशनल हाईवे खुलने में और एक सप्ताह और समय लग सकता है, 7-8 दिन. मगर वो भी वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा यदि रेनफॉल नहीं हुआ तो. मगर रेनफॉल होने का तो चांस कुछ मैक्सिमम है, तो हाईवे खुलने में और समय लग सकता है. मगर जो अल्टरनेटिव रूट जो चल रहा था उसके लिए बंद करने का कोई पहले तो नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था, मगर कल रात को ये नोटिफिकेशन आया है. क्योंकि अभी सिक्किम का सभी हेवी व्हीकल हो या सिक्किम का जितना भी व्हीकल हो, ये रोड से चलने की वजह से वो रोड भी खराब हुआ है. तो इसके कारण से मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया है 14 तारीख तक. तो इसके लिए सिक्किम को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. अभी कोई दूसरा अल्टरनेटिव तो नहीं है. मैंने पहले भी बोला कि दार्जिलिंग होके आना पड़ेगा, मगर उसमें लगभग 10 आवर्स का समय लग सकता है. तो हेवी व्हीकल के लिए भी वो रोड सुटेबल नहीं है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सिक्किम अब फेस कर रहा है अभी तक. बिल्कुल. और प्रकाश, आपने बताया कि सिक्किम में वेदर इट्स स्टिल इनक्लेमेंट, कुछ गारंटी नहीं है, वेदर और खराब हो सकता है. इन द कमिंग डेज रेन्स कैन अफेक्ट द मेंटेनेंस वर्क. 5 दिन का टाइम लिया गया है और क्लोज किया गया है रूट्स को
कुछ आपके पास इस बारे में अपडेट्स है, कुछ डिटेल्स है कि 5 दिन में ये मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट किया जाएगा, और इन केस ये एक्सटेंड किया जाता है, क्लोजर जो है रोड्स का एक्सटेंशन होता है, तब क्या किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज? ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा 5 दिन में कंप्लीट होगा कि नहीं, क्योंकि आज भी बारिश हो रहा है और सिर्फ जहाँ पर मेंटेनेंस हो रहा है वहाँ बारिश नहीं होने से भी उसका असर नहीं होता है। अपर साइड में, नॉर्थ सिक्किम साइड में है या अपर हिल साइड में बारिश हुआ भी उसका असर नीचे हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बारिश हो रहा है, क्योंकि IMD का जो रिपोर्ट है सिक्किम में और बारिश होने के चांसेस हैं। आज भी बारिश रात को भी हुआ, अभी भी हल्की बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, लगभग 40 डेज हुआ सिक्किम में बारिश लगातार उसमें हो रही है। तो बारिश एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 5 डेज में एक रोड ओपन होगा कि नहीं, मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट होगा कि नहीं, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि सब बात बारिश के ऊपर ही डिपेंड करेगा।